Good morning, friends, and welcome back to Ashok Leyland Presents Trans India. Real people, real emotions, powered by Hindustan Petroleum and Safe Express, the leader in express distribution, redefining logistics in India. In this episode, we continue our coverage of the Managing Committee meeting of All India Motor Transport Congress, the first meeting under the presidency of Dr. Harish Sabharwal. In the last episode, we heard the views and comments of ministers and the senior leadership of AIMTC. Today, let's hear it from the common man in AIMTC. For those alien to AIMTC meetings, simply organizing these meetings is a huge task. You have members coming from all parts of the country and converging for the meeting for 2 days. The host association or members are responsible for making all arrangements from the moment a member arrives in the city. This at times includes his travel arrangements from the nearest airport or railway station. And when such massive arrangements are involved, there are bound to be some lapses. But I'm sure, with industry issues being the larger focus, these minor lapses can be ignored by the members. At the end of the day, the person to be held responsible for all the lapses and praises is the president. So how does Dr. Harish Sabharwal rank himself after his first meeting? Modest as always, Dr. Sabharwal, in an exclusive interaction after all the guests had left, talks about the meeting and the outcome. Here's our interaction with Dr. Harish Sabharwal. Harishi, your first meeting as AIMTC president, first managing committee meeting. How was the feeling? How was the emotion like? I think you are the better judge for this, and let's go in the zone-wise our two operators to get the feedback. You will be known to everything. But as far as my personal opinion is concerned, I think everything has gone well. I got the appreciation, I got the support and cooperation from all the zones. My all vice presidents were fully active in this meeting, and they did a job, very commendable job. All the members were well disciplined, and the place which we chose, I think it was the you can say a highlight of this meeting that we should Icing on the cake. Yeah, icing on the cake, you can say. It is the right word. So I think everybody gone. When every member went back happy, then it shows that That's what you want. Yeah, we are satisfied with your performance. Rest people will do. People will tell you. But Harishi, getting the Chief Minister of Himachal Pradesh, ये कितना important था from an industry point of view? Sir, it was equally important as our 2017 meeting was. He was quite serious about the development, about his state. He offered so many things, so many opportunities related to our trade. He offered electric buses, he offered electric trucks for the permanent contract, he offered service stations, he offered electric stations, he offered us the fitness centers even. And he was quite serious. That was the reason he came along with 5 ministers of the state. Absolutely. All the bureaucracy, their commissioners, their commissioner transport, commissioner MCD, commissioner PWD, all were there. So it shows that his seriousness, that he was quite serious, and we are also keen to join hands with him to develop, to promote our AMTC, to promote our trade, to promote our truckers and bus operators. Harishi, what was the major topics that were discussed and what was the solution that we came up to end of the day? See, our problems are unending, I feel. I am there in IMTC for last 40 years. Problems are unending and problems goes on rising day by day. So we discuss all the problems. We came to some solutions. We came to some proposals to make the government. We were lucky that we had our transport minister with us in the meeting. Absolutely. And during the meeting, he gave us a serious concern. And the problems like our tax, NGT tax is there, NGT tax, e-challan, and abolition of borders. All things were taken by him seriously, and he has promised in our August gathering during the meeting that I will take care and I will try to solve within 1 month all these 3 problems. Okay, we understand that NGT is a little concern. It has a little concern with Supreme Court also. Yes. But if required, we will go to Supreme Court again and will knock the door of law.
Haji, now that the meeting, all the issues were discussed, and you have a roadmap for your working in your tenure, what steps will you be taking? What will be the sequence Sir, of events now? for first quarter we had an agenda, and on top priority was e-challan, our abolition of borders, and GST problems. Even in income tax, we are facing some problems with regard to 194. So all these things are on priority for me till we solve it. Okay, Harji, finally, the last topic of the day was the concern about AIMTC's office. Yeah, it is very, very important for us. How will you be taking it up? Because there is no immediate solution to this, really. Sir, see, it's an interest of paramount for us. Absolutely. It's very important. Without office, we cannot even work for a day. So we have planned in a way that we'll be going to High Court. We will request the High Court that it is a office. It's not a business office. It's an office of a community. It's office of our trade, which is running for last 88 years on no profit, no losses basis, and it represents the community. It represents our segment in country. So kindly look at it in a sympathetic way. If it works, it is fine. If it doesn't work, then we'll go for a next office. We will be compelled to locate any alternative space for it. But within 1 year, it will be solved. That I can promise. Within my tenure, it will be done. I got support and cooperation from, especially from South. I'm thankful to J.R. Shangopaji and team. They said that, okay, whatever money is required, we will collect the funds and will support you. But go and find a best place for the office in Delhi itself, because the registered office itself is in Delhi for last 80 years. Absolutely. How about a word for the chairman of this organizing committee, Bhim Wadhwaji? Bhim Wadhwaji is a quite senior person and is a very cool and polite, very सुलझे हुए आदमी जिसको बोलते हैं ना, very positive always. और उनके साथ रहने से जो हमारे को इंस्पिरेशन मिलती है ना, that is wonderful. वो जब भी कहीं किसी काम में साथ खड़े हो जाए ऑल इंडिया में, आई फील प्राउड इन शेयरिंग दैट उधर सक्सेस कंफर्म होती है. तो आई थिंक ही वाज द बेस्ट पर्सन इन नॉर्थ इंडिया टू बी चेयरमैन ऑफ दिस मीटिंग. सो आई प्रपोज्ड, आई रिक्वेस्टेड हिम एंड ही एक्सेप्टेड हैप्पीली. हरी जी, वन लास्ट क्वेश्चन. ये मेरे को 4-5 कॉल्स इंडस्ट्री के बाहर से आए हैं. दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग अप दिस क्वेश्चन. आई एम गिविंग यू द बैकग्राउंड टू दिस क्वेश्चन. दे सेड दैट हरीश जी हैज बीन अ बस पर्सन फॉर अ लॉन्ग टाइम, and AIMTC is primarily considered to be a truckers body in terms of But it's not an exceptional body for trucks. Yes, but the it focus, has members. 17 lakhs buses are also members there. Yes, but the weightage is always weightage, towards trucks. Yeah. If we go by a taraju, then it is a little. Yes. So how will you balance this? What is your plan? You see, I have worked for truckers and with truckers for last 18 years. 90 to 2018, I was in trucks along with the buses also. My family belongs to both of the segment, so I know the problems and expectations from trucks as well as buses. I think there is no problem in handling both the things simultaneously. I am confident that I will handle both the things, and these both things are like my both hands, like my both eyes. So there cannot be any difference between them. As and when truckers require me, I will be there on the road with them, and as and when bus wala will require me, I will also be there. I am bound to do this. It is my duty. She will be good doing the balancing act. Yeah, balancing. I am confident I can do. Coming up after this very short break, our interaction with other AIMTC members, former presidents, and 2 women transporters making their debut in AIMTC's managing committee. You are watching Ashok Leyland presents Trans India, Real People, Real Emotions, powered by Hindustan Petroleum and Safe Express, the leader in express distribution, redefining logistics in India. With an unparalleled reach across 31,256 pin codes, Safe Express operates 24/7, 365 days a year with the fastest network in the country, covering 2,734 direct routes. With a new route departing every 32 seconds, they ensure an average pan-India transit time of just 2.4 days. Their strength of 855 gateways makes first-mile connectivity and last-mile delivery seamless and swift. For middle-mile surface connectivity, 103 transshipment hubs across India ensure smooth cargo movement and optimized transit times. For middle-mile air connectivity, Safe Express partners with leading airlines across 76 domestic airports, ensuring speed and efficiency in air logistics. With 95% plus service reliability, they don't just deliver, they ensure your cargo reaches its destination safely and on time. See you on the other side of this very short break
as we continue our coverage of AIMTC's Managing Committee meeting. आज इस ट्रक पे एक किसान की जमा पूंजी जा रही है। एक दुकानदार की तरक्की भी है, एक मां की ममता भी है। आज इस ट्रक में सिर्फ गेहूं चावल नहीं, एक बेटी की ताकत भी सफर कर रही है और उनके संग एक ड्राइवर की मेहनत भी है। क्योंकि इस ट्रक में सिर्फ अनाज नहीं, इस देश के कई लोगों के अरमान और सपने भी चलते हैं और हमारा काम है उन्हें सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाना। अशोक लीलैंड, कोई मंजिल दूर नहीं। HPCL's trucker amenities in highways. In line with the directions from the Ministry of Petroleum and Natural Gas, HPCL has been setting up trucker amenities in its retail outlets across the country. These amenities would serve as an oasis for the truckers who are the major users of highways. They will have safe parking, clean toilets, open bath facilities, self-cooking area and dormitories for their truckers. The booking of Daba can be done through mobile app. Welcome back to Ashok Leyland presents Trans India. Real people, real emotions, powered by Hindustan Petroleum and Safe Express, the leader in express distribution, redefining logistics in India. With the road transport industry always being male dominated, it was natural that AIMTC's managing committee never had women transporters. However, our effort has always been to bring women to the fore and let the world see their accomplishments. Following Trans India's initiatives to promote women transporters, AIMTC elected 2 women transporters to the managing committee. These are Vandana Ladda from Indore and Harinder Pal Kaur from Kolkata. We interact with Vandana and Harinder and gauge the expectations from the meeting. Here's an exclusive interaction with them from the cool hills of Kasoli. Vandana ji, your first year in the managing committee of AIMTC. First of all, how does it feel? कैसा लग रहा है आपको? गिरीश, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि वहाँ जाएंगे तो क्या होगा। तो जो मैं अगर कल से अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो लोग मुझे आश्चर्य की निगाहों से देख रहे हैं। कुछ के प्रश्न थे कि आप अकेली आई हैं, आपके हस्बैंड नहीं आए हैं। मेरा जवाब था वो क्यों आएंगे, मैं हूँ कमेटी की मेंबर। तो एक महिला इंडिपेंडेंटली AIMTC में आ सकती है, ये भी शायद एक आश्चर्य का विषय है। लेकिन मैं खुश हूँ कि हमने एक पाथ बनाया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगली बार हम और महिलाओं को देखेंगे यहाँ पे। Vandana, how do you feel? सेम लाइक वंदना जी, आई एम वेरी एक्साइटेड। लेकिन मैं आगे भी CGT और BGTA की मीटिंग्स में जा चुकी हूँ तो लोग मुझे थोड़ा पहचान रहे हैं, पर AIMTC की मीटिंग में फर्स्ट टाइम आई हूँ तो आई एम सेम लाइक वंदना जी, आई एम वेरी एक्साइटेड कि देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। What are you expecting? क्या लगता है क्या होगा मीटिंग में? कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। जैसे हम लोग जो लड़कियाँ हैं वो मोस्टली ड्राइवर्स के लिए बात करते हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि जी इस मीटिंग का एजेंडा क्या है, कि कुछ ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाले हैं ड्राइवर्स के लिए, कि गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया था 1000 रेस्ट एरियाज़ बनाने वाले हैं, जो मोदी जी ने खुद से अनाउंस किया था। तो मैं देखना चाहती हूँ कि इसके ऊपर जो कुछ गवर्नमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ ब्लूप्रिंट मांगने वाले हैं,
है ना, जहाँ फिर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जैसे टोल के रेट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं उसके लिए, जहाँ फिर कंपटीशन में हम बैड बिडिंग करते हैं उसके लिए, जहाँ फिर ट्रेड को आगे लेके जाने के लिए इनकी क्या थॉट प्रोसेस है, ये क्या हमें फ्यूचर दिखाने वाले हैं। मैं देखना चाहती हूँ कुछ क्या पॉलिसीज़ ये फॉर्म करने वाले हैं, जहाँ कुछ गवर्नमेंट से बात करने वाले हैं। देखना चाहती हूँ कि हमारी प्रॉब्लम के लिए कुछ बात करते हैं तो हम जाके अपनी अपनी स्टेट में कैसे काम करेंगे उसके लिए कुछ हमें इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं। मैं एक्साइटेड हूँ कि कुछ तो करेंगे ये। एज अ पॉलिसी, अगर हम पॉलिसी चेंजेस की बात करें, व्हाट डू यू थिंक इज रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री टुडे? क्या चेंजेस आनी चाहिए? देखिए गिरीश, सबसे पहले अगर मैं AIMTC की बात करूं तो कोई भी किसी भी मैनेजिंग कमेटी में कोई नई बॉडी आती है, नया प्रेसिडेंट आता है, उसका अपना कुछ एजेंडा होता है। तो मेरा एजेंडा इस समय मैं ये चाहती हूँ कि AIMTC अपने हाथ में कुछ ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ ले जो हमारे ट्रेड के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, ड्राइवर रेस्ट एरियाज़ ऑन हाईवेज़, जो कि गवर्नमेंट बोलती है, हम भी बात करते हैं, लेकिन असली में कुछ भी नहीं हुआ है उस बारे में। बहुत गिनती के कुछ हैं, उनको हम नेग्लिजिबल कह सकते हैं, जबकि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक इस चीज़ पे। और एक गवर्नमेंट के साथ कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जो हमारे ट्रेड के लिए बहुत फ्रेंडली नहीं है, उन पे एक बात की जाए, हमारे पेन को ऊपर तक पहुंचाया जाए। कौन से मुद्दे हैं ये? जैसे बॉर्डर हमने MP में तो हटवा दी है हमारी कमिटी ने, लेकिन बहुत सारी जगह अभी भी वो इरिटेटेड है। टोल पे कहा जाता है कि वेट टाइम नहीं है, लेकिन है। बहुत समय से सुन रहे हैं कि टोल की पॉलिसी चेंज होगी, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। एक चालान का जो मुद्दा है वो भी एक हम लोगों को बहुत पेन दे रहा है। इसमें कहीं कुछ करेक्शन की, पॉलिसी लेवल पे करेक्शन की बहुत ज़रूरत है। ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिससे कि अगर, और ड्राइवर तो ऑलवेज, जब तक हम ड्राइवर के करियर को एक रेस्पेक्टफुल और आरामदायक नहीं बनाएंगे, तब तक हम इस बिज़नेस में भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। ड्राइवर अगर देखते हैं हम तो आई थिंक पिछले 10-15 साल में नए ड्राइवर्स आना बंद हो गए हैं। वही ड्राइवर हैं जो इस कंपनी से उस कंपनी जा रहे हैं, नए ड्राइवर बहुत कम हो गए हैं। तो जब तक हम इस ऑक्यूपेशन को अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी जो बेस समस्या है, ड्राइवर नहीं है तो हमारा बिजनेस कैसे है। बट आप दोनों की कंपनीज में ड्राइवर शॉर्टेज है? देखिए 1 to 1 अगर मैं बोलूँ मेरे लिए यहाँ तो शायद नहीं है, लेकिन उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है वो मैं जानती हूँ। और मैं गेट टू दैट। हरी, आपके यहाँ पर ड्राइवर शॉर्टेज है? नहीं, एज ऑफ नाउ तो नहीं है। हमारे पास उल्टा स्पेयर ड्राइवर्स रहते हैं। हम एक्स्ट्रा ड्राइवर्स रखते हैं कि कोई ड्राइवर अगर घर चला गया, किसी के हेल्थ की इश्यूज हो गए, तो हमारे जो स्पेयर ड्राइवर्स हैं वो बैकअप प्लान है। व्हाट आर यू डूइंग डिफरेंटली कि आपके पास ड्राइवर शॉर्टेज नहीं है? बिकॉज सब लोग चिल्लाते हैं ड्राइवर शॉर्टेज। इज देयर रियली अ ड्राइवर शॉर्टेज? सर, गिरीश, जब अभी तक जो हमने ग्रोथ करी है वो इसी हिसाब से की है कि ड्राइवर की अवेलेबिलिटी को समझ के ग्रोथ करते हैं। अगर मैं आज सोचूं कि एक साथ बिग नंबर ऑफ व्हीकल ले लूँ तो शायद मुझे भी शॉर्टेज होने लग जाएगी। लेकिन जो ड्राइवर्स हैं उनको रिटेन करना, एक अच्छी क्वालिटी के ड्राइवर्स को ढूंढना, ये बहुत मुश्किल हो गया है। अब अभी जो हमारे पास जो हैं, हम उन्हीं को रिटेन करने और इम्प्रूव करने में अपना सारा एफर्ट लगा रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिसेस की बात करें तो गुड सैलरी, टाइमली सैलरी, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स एंड अ गुड कनेक्ट विद द ड्राइवर, विच आर द मेन थिंग्स जो कि हम फॉलो कर रहे हैं और उससे हमको रिजल्ट भी मिल रहे हैं। मैं तो ये फील कर रही हूँ कि अगर एक मेरा मैनेजर बात करेगा और मैं बात करूँगी, या हेमंत बात करेंगे और मैं बात करूँगी, दोनों में फ़र्क है। What about you, Hari? मैं यही वंदना जी की बात में ऐड करना चाहती थी कि हम दोनों की कंपनीज़ में एक USP कॉमन है, दैट इज़ फीमेल जो ड्राइवर्स को डील करती हैं। हम लोग का क्या है, हम उनको एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात करते हैं। दूसरा, ड्राइवर्स की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जब आप उनकी पूरी बात सुन लो। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, उनकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। और हम क्या होता है, लड़कियां पेशेंसली उनकी बात सुनते हैं। और जब भी वो कॉल करते हैं, मोस्टली कल ही जैसे हम लोग रास्ते में आ रहे थे, संडे था, तो मेरी टीम ने किसी ने कॉल नहीं उठाया। तो मेरा क्या होता है, मैं किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग में होती है, अगर ड्राइवर का कॉल आया, मैं मीटिंग साइड में करके पहले ड्राइवर का कॉल उठाती हूँ। तो ये 90% प्रॉब्लम वहीं पर रिजॉल्व हो जाती है। ड्राइवर्स को हमारे ऊपर एक ट्रस्ट है कि मैडम है,
हमारी सुन लिया, सुनवाई काम होगी। हो गया। तो ये हमारी कंपनी में Yes. मुझे लग रहा है डील करने का हम लड़कियों का एक तरीका अलग है कि ना हम उनसे बदतमीजी से बात करते हैं, ना हम उनके साथ स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ना हम उनको अब्यूजिव तक लेके जाते हैं। हम रिस्पेक्ट देते हैं, उससे हमें डबल रिस्पेक्ट मिलती भी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ट्रेड में एक और डिफरेंस आना चाहिए कि जो हम अभी ड्राइवर शॉर्टेज की बात कर रहे हैं, अगर AMTC में ऐसी अगर एसोसिएशन में लड़कियों को ज़्यादा लाएंगे, अब देखेंगे इन फ्यूचर, अब अभी क्या हो गया, ये मेल डोमिनेंसी इंडस्ट्री है, राइट, ये लिखा जाता है, जबकि अभी लड़कियां काफ़ी ज्वाइन कर चुकी हैं। लेकिन अगर हम लोग मेन बॉडी में लड़कियों को लाएंगे ना, तो ये मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री मेल हट जाएगा, तो आप देखोगे इन फ्यूचर फीमेल ड्राइवर्स भी हमें मिलने लग जाएंगी। अगर मेन कोर कमेटीज़ में चेंज किया जाए, एटलीस्ट 30% लड़कियों को लाया जाए, आप देखोगे फ्यूचर में आपको लड़कियां मिलेंगी ड्राइवर्स। तो ये इसके ऊपर भी इनडायरेक्टली हम काम कर सकते हैं, जस्ट एक थोड़ा सा कमेटी में चेंज करके। Himachal Pradesh has extensive use of road transport not just for goods but also for passengers. The state not only flourishes in agriculture, who has not heard of Himachal apples, but also in tourism. Many of us have been to the hills of Himachal Pradesh. But what are the issues that the transporters of Himachal Pradesh face? Sharing his insights is Ramratan Sharma, the president of All Himachal Pradesh Taxi Operator and Driver Association. दोस्तों नमस्कार, मैं राम रतन शर्मा, अध्यक्ष ऑल हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटर और ड्राइवर एसोसिएशन। दोस्तों मैं धन्यवादी हूँ ट्रांस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क का, जिन्होंने मुझे अपने हिमाचल प्रदेश से संबंधित टैक्सी ऑपरेटरों की जो हमारी समस्याएं हैं उनको रखने का मौका दिया। मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है और हमारी जो मौजूदा हिमाचल प्रदेश की सरकार है, जिसने उसको अपनी गारंटियों में भी लिखा था, हम अपने उसमें जो इनका मैनिफेस्टो होता है, चुनाव का घोषणा पत्र होता है, उसमें भी लिखा है, जिसमें हमारा टैक्सी का 12 साल से 15 साल का परमिट करने बारे गवर्नमेंट ने हमें आश्वस्त किया था। लेकिन दोस्तों आज की मौजूदा परिस्थिति ये है कि हमारे टैक्सी ऑपरेटर जिन्होंने 28 लाख रुपए की इनोवा क्रिस्टा गाड़ी 2018 और 19 पे ले रखी है, उनकी मैं व्यथा आपके सामने बताता हूं कि वो गाड़ी हमारी 28 लाख ऋण के बाद 40 लाख तक पहुंच गई है, क्योंकि बीच में हमारे 2 साल कोरोना काल में रहे। 1 साल हमारा यहाँ पे भयंकर आपदा आई, बाढ़ आई, जिसकी वजह से 3 साल हमारे बरस्ट हो गए, हमारी गाड़ियों के टायर बरस्ट हो गए, हमारी गाड़ियाँ सुचारू रूप से यहाँ पे ना कोई हमारे यहाँ पे सैलानी आए। पूरे हिमाचल प्रदेश को एक बहुत पूरा भारत और पूरा विश्व कोरोना से ग्रसित था। उस समय हम सरकार से ये मांग करते आए, केंद्र सरकार से मांग करते आए हैं कि उन 2 सालों की एवज में हमारा जो टैक्सी परमिट है वो 12 साल से 15 साल किया जाए, क्योंकि 1 साल उसमें हमारी जो आपदा हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर आई थी उसका भी हम मांग रहे हैं। हम सरकार से कोई भी सरकार के ऊपर हमारे टैक्सी के उस परमिट की वजह से अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। देखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार ने क्या किया, कर्मचारियों को OPS दिया, लेकिन उसकी एवज में उन्होंने 10 रुपए डीजल और पेट्रोल तुरंत बढ़ा दिया, जिससे हमारी टैक्सी गाड़ियों के ऊपर, कमर्शियल गाड़ियों के ऊपर, कमर्शियल व्हीकल के ऊपर वो मार पड़ी। और हमारे किराए के अभी देखिए HRTC का इन्होंने 10 रुपए किराया बढ़ा दिया सीधा, और इन्होंने प्राइवेट बसों का 10 रुपए किराया बढ़ा दिया। क्या टैक्सी ऑपरेटर एक दुधारू गाय हैं? उनके आप 7 प्रकार के टैक्सों के रूप में 7 प्रकार के जो उनके कागज होते हैं, एक उनका जो अतिरिक्त इंश्योरेंस होती है सरकार को देती है, लेकिन टैक्सी ऑपरेटर के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। उसके बाद देखिए अब सरकार ने एक नया फरमान जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हाँ, हम समझते हैं क्लीन हिमाचल होना चाहिए, स्वच्छ हिमाचल होना चाहिए, स्वच्छता का जो
संदेश है वो पूरे विश्व में फैलना चाहिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर ही की बात नहीं है। उसकी देखो इन्होंने कहा कि कमर्शियल व्हीकल में, टैक्सियों, गाड़ियों में आप एक डस्टबिन रखोगे, लेकिन उस डस्टबिन को खाली करने की कोई व्यवस्था नहीं बनाई। हमने वो डस्टबिन खाली कहाँ करना है? तो दोस्तों ये हमारे ऊपर कुछ चीजें जो है थोपी जा रही है। मैं ऑल हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से मुख्यमंत्री से और माननीय अपने जो परिवहन मंत्री हैं उनसे मांग करता हूं कि हमारे इस परमिट के बारे में और हमारे इस जो डस्टबिन का फैसला लिया है उसके बारे में कुछ सोचा जाए। और जो आपने HRTC देखिए, एक ऐसा, मैं आपको, नालायक पुत्र है हिमाचल प्रदेश के पास, एक नालायक निगम है जो आज तक कोई भी आंकड़ा उठा लीजिए, HRTC कभी भी घाटे से बाहर नहीं निकली है। हर एक वर्ष उसको घाटा ही घाटा हुआ है। आप उसके किराए बढ़ा रहे हैं, टैक्सी ऑपरेटरों के बारे में आप सोच नहीं रहे हैं। तो मैं फिर निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि आज हमें 11 साल हो गए, हमारे कोई भी किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है, ना ही हमने कभी सड़कों के ऊपर इसके लिए मांग करी है। लेकिन ऐसा ना हो कि हमें सड़कों के ऊपर उतरना पड़े और अपनी मांगों के लिए आपके जो सचिवालय है उसके घेराव के लिए आना पड़े। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इजाजत लेता हूँ। धन्यवाद। The road transport industry has many stories and many legends who have spent decades in the road transport industry, including many decades in AMTC as well. After this very short break, we interact with few such legends from the industry, including AMTC former presidents Mr. Girdhar Gulati and Dr. G.R. Shanmugappa, and managing committee members Nimish Patel and Kamal Gandhi. You are watching Ashok Leyland presents Trans India, Real People, Real Emotions, powered by Hindustan Petroleum and Safe Express, the leader in express distribution, redefining logistics in India. India's supply chain moves at lightning speed, and Safe Express is at the heart of it all. With a fleet of 12,815 fully containerized, GPS-enabled vehicles and a dense network of logistics hub, they ensure businesses stay ahead. Whether it's the bustling metros or the remotest locations, their strategically located 86 logistics parks ensure smooth and efficient connectivity across the nation. When your shipment is booked with Safe Express, rest assured, it's as good as delivered. We'll see you on the other side of this break as we continue our coverage of AMTC's Managing Committee meeting. आज इस बस में एक एस्ट्रोनॉट जा रहा है। उनके पास एक रॉकस्टार भी बैठी है। इनके बीच एक लॉयर भी है, एक इंजीनियर भी है, और एक डिजाइनर भी जा रही है। क्योंकि इस बस में सिर्फ बच्चे नहीं, इस देश का भविष्य जा रहा है और हमारा काम है उन्हें सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाना। अशोक लीलैंड, कोई मंजिल दूर नहीं। HPCL's trucker amenities in highways. In line with the directions from the Ministry of Petroleum and Natural Gas, HPCL has been setting up trucker amenities in its retail outlets across the country. These amenities would serve as an oasis for the truckers who are the major users of highways. They will have safe parking, clean toilets, open bath facilities, self-cooking area and dormitories for their truckers. The booking of Daba can be done through mobile app.
Welcome back to Ashok Leyland presents Trans India. Real people, real emotions, powered by Hindustan Petroleum and Safe Express, the leader in express distribution, redefining logistics in India. The road transport industry is very diverse with people from across India sharing different thoughts and ideas. Here we have with us Kaval Gandhi from Uttar Pradesh and Nimish Patel from Gujarat. Kaval heads Delhi UP road lines and is based in Kanpur, while Nimish, who has been working very closely with AMTC on many subjects, hails from Ahmedabad and heads Sri Somnath Carriers and Deep Road Lines. Here's our interaction with Nimish and Kaval. दोनों स्टेट्स एट द मोमेंट ट्रांसपोर्टर्स के लिए क्या कर रही हैं? निमिश भाई विद यू फर्स्ट. इन गुजरात हमारे स्टेट में तो अभी ट्रांसपोर्टर्स के लिए द बेस्ट थिंग वी आर डूइंग इज कि जो आरटीओ का स्ट्रीमलाइन किया है हमने सब कुछ. ऑलमोस्ट 80% सर्विसेज हैव बिकम फेसलेस. आरटीओ पासिंग के लिए जो व्हीकल आरटीओ में भेजना था वो भी अभी प्राइवेट में पासिंग हो रहा है. सो वी आर सेविंग डेज. संडे को भी पास होती है, वीकेंड्स को भी पास होती है. एनी डे ऑलमोस्ट 365 डेज वी आर आरटीओ पासिंग होता है. तो वी आर सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम. प्लस जो पैसा देना था, आज आरटीओ में कभी भी गाड़ी जाती थी 2-3 हज़ार रुपये देने से अलावा गाड़ी पास नहीं होती थी. प्राइवेट सेंटर्स में जस्ट 1200 रुपीज़ में गाड़ी पास हो जाती है. ओनली थिंग इज़ यू हैव टू मेंटेन योर व्हीकल. तो वो तो कोई गलत बात नहीं है उसमें कि भाई आप उसका रेडियम पट्टी और सब लगाओ और लगा के करो, तो फेयर इनफ है. हमारे गुजरात में हमने 5 साल पहले चेक पोस्ट निकलवा दी. आरटीओ चेकिंग हमने बहुत ही रिस्ट्रिक्ट करवा दिया है. आरटीओ चेकिंग ऑलमोस्ट 70% डाउन है. आरटीओ को जो भी काम करना है ऑफिस से करेगा, विजिलेंस से करेगा, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ से काम करेगा. हम कार कैरियर्स में सब एंट्री देते हैं. हाइट नहीं है तो भी 4.75 लीगली अलाउड है, राइट? तो भी सब एंट्री देते हैं. मैं नहीं देता हूँ. मैंने गाड़ी खड़ी करके झगड़ा कर लिया 2 बार. बोला तू मेरे को केस करके देना, 4.75 लिख के दे. तो आज से 7 साल पहले झगड़ा किया था, तब से बंद में 1 रुपये नहीं देता गुजरात में. देखिए, अभी योगी जी ने 2-4 काम तो बहुत अच्छे किए हैं. पहला कि सब चीज़ें ऑनलाइन कर दी वहाँ पे भी, यूपी में भी. जो पहले हर चीज़ आप जाएंगे आरटीओ तो होगी, आपको जो भी काम कराना है आपको आरटीओ ऑफिस जाना ही जाना है. अब इन्होंने क्या कर दिया, फेसलेस करते जा रहे धीरे धीरे ज़्यादातर चीज़ें. कि अब हम लोगों ने जैसे प्रपोज़ल, हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो महामंत्री हैं मनीष कटारिया जी हैं, उन्होंने कई प्रपोज़ल बना के इनको दिए हैं. जिनमें से एक प्रपोज़ल है कि जब एचपीए चढ़ता है, आज घूसखोरियों के पार्ट्स क्या क्या हैं, कि आप नई गाड़ी भी ख़रीदते हो तो जब फिटनेस कराने और गाड़ी रजिस्टर्ड कराने जाते हो तो आपको पैसा देना ही देना. अब नई गाड़ी में क्या कमी है किसी को पता नहीं, तब भी आपको पैसा देना है, चाहे कोई भी हो. विदाउट इन लोगों के घूस दिए बिना आप रजिस्टर्ड करा ही नहीं सकते ट्रक को. तो अब हम लोग फेसलेस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि जब एचपीए चढ़ना है. अब एचपीए चढ़ना मतलब फाइनेंस आपने करवाई है गाड़ी, एचपीए चढ़वाने का वो बोलेगा हमको 1000 रुपये चाहिए. किस लिए? एचपीए उतारने का 2000 रुपये चाहिए. और फिर रीफाइनेंस यदि किसी ने लिया फिर एचपीए चढ़ाने का 1000 रुपये चाहिए या 2000 चाहिए. इसको हम लोगों ने बोला है कि आप एक पोर्टल पे ही अपने जो आरटीओ का जो आपका पोर्टल है, आप उस पे ही एक फाइनेंसरों के लिए एक पेज दे दीजिए कि वो खुद ही चढ़ाए, वो खुद ही उतारे. देखिए, अब सिंगल ऑपरेटर जो बोलते हैं 2-4 गाड़ी वाले, 10 गाड़ी वाले जो फेस ही नहीं कर सकते अधिकारी को, अब वो तो मजबूर है क्योंकि उनको डर ही लगता है केबिन के अंदर जाने में. एज अ फ्लीट ओनर, जितने भी फ्लीट ओनर है आज की तारीख में लड़ने को तैयार है ज़्यादातर, क्योंकि इतना सेचुरेट हो चुका है धंधा, इतने प्रॉफिट कम हो चुके हैं कि वो लड़ने को तैयार है, पैसा देने को तैयार नहीं. टॉकिंग ऑफ प्रॉफिट्स, आप बिजनेस में कितने सालों से हो? 40 years. What was your profit percent 40 years back? I'll give you a very straight answer. I came into business 1984. मेरे हिसाब से 1984 में भी ट्रक इंस्टॉलमेंट नहीं निकालती थी और आज भी नहीं निकालती है. Why? Because you are not, हमारा बिजनेस कॉस्ट प्लस है ही नहीं. हम कभी कॉस्टिंग किया ही नहीं है. अगर हम एक एज ए इंडस्ट्री कभी भी बैंक में लोन लेने जाते हैं तो वी प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसका ROI क्या होता है, उसका बैड फीचर्स क्या है, सब रिस्क फीचर सब एनालाइज करते देते. हमारा कभी हम फाइनेंस करने के हमने हमारा कभी कॉस्टिंग भी निकाला है. लेकिन इसमें बिसाइड्स दैट, आई मीन डिस्पाइट दैट दिस इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट हुआ है, ट्रक्स महंगे हो गए हैं, ट्रांसपोर्टर्स जो कभी फिएट में घूमते थे आज BMW मर्सिडीज में घूम रहे हैं.
So there is profit, right? नहीं, this is not profit, this is rotation of money. हम कभी डेट फ्री होते ही नहीं है। Obviously, I mean, आप But short you- रखोगे तो debt free कहाँ से नहीं, होगा? ऐसे नहीं, बात बेसिक बात वो है कि आप अगर एक स्टैंड अलोन व्हीकल लो एज ए बिजनेस, एक स्टैंड अलोन व्हीकल लो और उसका कॉस्टिंग निकालो 1 साल का, डीजल का कॉस्ट क्या है। आज आई गिव यू वेरी सिंपल ऑफ द हुक। आज आपका डीजल कॉस्ट इज 60% प्लस, योर टोल कॉस्ट इज 17-18% प्लस, योर अदर कॉस्ट आर 14-15% प्लस, राइट? सो यू आर ऑलरेडी एट 89-90%। तो 10% पर रिस्क मैनेजमेंट ऑफ 50 lakhs इज नॉट अ गुड बिजनेस। आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल कि जब मैं बिजनेस में आया तब फाइनेंस कंपनीज नहीं थी। सुंदरम फाइनेंस वाज द फर्स्ट गाय टू कम एंड गिव यू अ लोन। हमको बैंक से लोन लेते थे, 100% लोन नहीं मिलता था, हम 25% मार्जिन डालते थे व्हीकल में, राइट? आई गिव यू माई एग्जाम्पल। व्हेन आई केम इनटू दिस बिजनेस माई कंपनी हैड 20 vehicles. आई वाज 19 व्हेन आई केम, right? I just finished my graduation and I came into the business by accident. That's a different story. But I came. But you're happy in this space? I am not. I'll be very. I didn't get my son here. I have only one son. I told him go to America. Don't stay here. Okay. If you want to do my business. Okay. If you want to do something else, stay here. Okay. So we came. We were taking by finance from cooperative banks. Right. So we had to put 25%. Really 25%. We couldn't overinflate or anything. At that time, you know what the cost of the vehicle was, including body, 3 lakh rupees. 6-wheeler. So we used to put in that 75,000 rupees, 2,25,000 का इंस्टॉलमेंट लिया। 3 साल में हम गाड़ी फ्री करते थे। आई टेल यू फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, 3 साल में गाड़ी फ्री करने के लिए हम 1 लाख रुपए डालते थे। अच्छा। इंस्टॉलमेंट भरने के लिए घर से डालते थे 1 लाख रुपए। द ओनली एडवांटेज वी हैड वाज आफ्टर 3 years दैट व्हीकल सोल्ड फॉर 3 lakhs. Right? That was the only advantage we had. So we started multiplying by 10. We started buying 25 vehicles at a time. 3 साल में 75 व्हीकल बेचते थे और तीसरी my average, I had 175 vehicles. Average fleet age was 3.5 years. Okay. Very good. And today? So today I'm at 15 vehicles. Well, tell me, as a youngster, do you think technology has helped you making business simpler? नहीं, डेफिनेटली सर, टेक्नोलॉजी तो बहुत हेल्प कर ही रही है, बट इसके अंदर जो परेशानियां हम लोग फेस कर रहे हैं, जैसे सर ने बताया कि आज की तारीख में जो किस्त है, जैसे नई गाड़ी की कीमतें ये ले गए, टेक्नोलॉजी तो इन्होंने लगाई, बट टेक्नोलॉजी की कीमत इतनी ज़्यादा ले रहे हैं कि वो इस समय सर्वाइवल नहीं है। कि आज जो 10 चक्का 12 चक्का 12 व्हीलर मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया था मेरे ख्याल से 2009 में जब लॉन्च हुआ था, मैंने 25 गाड़ी की एक साथ डील करी थी और उस टाइम पे मिला था मेरे को 12.5 लाख रुपए का, जब बल्क डील करी थी। आज वही गाड़ी जा रही है ऑन रोड करते हुए करीबन 35 से 40 लाख रुपए की पड़ रही है। प्लस पहले हमारा जो खर्चा होता था सिर्फ इंस्टॉलमेंट पे होता था कि आज 12 लाख की हमारी इंस्टॉलमेंट है तो गई 30,000 की, 35,000 रुपये की। आज की तारीख में 35,000 की तो इंस्टॉलमेंट जानी है, अब तो 70,000 की जानी है। यदि आप 35 लाख लोगे तो 80,000, 90,000 या 1 लाख की तो इंस्टॉलमेंट है, प्लस 40 से 50,000 रुपये का टोल है उसके ऊपर। जो सबसे मेजर कॉस्ट आ गई है टोल की, जिसकी कहीं पे भी चेकिंग ही नहीं रहेगी सरकार के अंदर, ये पैसा जा कहाँ रहा है भाई। टैक्स इतने रूपों में ये लोग ले रहे हैं, रोड के नाम पे, डीजल के अंदर तो रोड के नाम पे ले रहे हैं, रोड के नाम पे टोल ले रहे हैं, रोड टैक्स अलग ले रहे हैं। हम लोग जैसे छोटे ट्रांसपोर्टर साल का 1.5 से 2 करोड़ रुपए सिर्फ टोल दे देते हैं, सिंगल ट्रांसपोर्टर। किसी की गलती नहीं है, बेसिकली ये सैचुरेशन पॉइंट है इस समय। जैसे आपने 125 गाड़ी से 15 गाड़ी कर दी, मैं भी अब उस स्टेज पे आ रहा हूँ। अभी तक मेरे को ये बहुत अच्छा धंधा लगता था कि 4 साल 3 साल में गाड़ी फ्री होती थी, जो आपने जैसे बताया कि हमने गाड़ी खरीदी 15 लाख की और बेच ली 12 लाख में, तो हमने ये सोचा हमने 4 साल मेहनत करके 12 लाख कमा लिया, चाहे जेब में से 3 लाख चला भी गया तो भी 12 लाख कमा लिया। हमारे पास से कुछ लगा नहीं। आज की तारीख में क्या है, 40 लाख की गाड़ी ले और वो रह जाएगी 10 लाख की और फ्री करने में फिर 10 लाख लग जाएगा, तो वो उसका वायबिलिटी रह नहीं गई। अदरवाइज आप यदि देखेंगे जो परचून के अंदर जो पुराने एथनिक जितने परचून के, आप किसी को भी परचून वालों को ले लीजिए या टू बी बिल्ड वालों को ले लीजिए, किसी ने गाड़ियाँ बनाई नहीं है। सब अपने मार्केट की गाड़ी से खींच रहे हैं काम कि चलो देखो कब तक ये चल रहा है काम। कोई बहुत लंबा चौड़ा तत्व नहीं रह गया इसके अंदर। The world cannot do without transportation. Exactly. That is the bottom line. So I can never say कि मैं कभी नहीं बोल सकता कि बिजनेस बंद हो जाएगा। बिजनेस चलेगा, नए लोग आएंगे, नए लोग बर्बाद होंगे, नए लोग उसकी जगह लेंगे। That is the cycle. बर्बाद नहीं होंगे वो, बेसिकली क्या, जिनके पास जो बोल रहे हैं ना आजकल फंडिंग आ रही है, बेसिकली जैसे आज हम लोग परचून के हैं, 50 ब्रांचें हैं, 4 घाटे में चल रही है तो फ़र्क नहीं पड़ रहा।
ऐसे ही जो नए नए आ रहे हैं अपना फंड लेके आ रहे हैं, डिलीवरी और ये सब फंड लेके आ रहे हैं। अब इनको पता है इन्होंने दुबई से लिया है फंड, उसको ही फर्क नहीं पड़ रहा है कि इंडिया में ब्रांच चल रही है, 100 करोड़ घाटा खा भी जरूर, लेकिन उस 100 करोड़ के घाटे में उनको नहीं पता इंडिया के 100 ट्रांसपोर्टर मर जाएंगे। नहीं, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हम गुजरात का, जब मैं बिजनेस में आया 86 87, अब बॉम्बे और हम गुजरात अहमदाबाद की बात करता हूँ, वी हैड 7 ट्रांसपोर्टर्स, बिटवीन दी 7 ट्रांसपोर्टर्स वी हैड 1000 व्हीकल्स। हम मार्केट निकालते थे, आई विल बी वेरी फ्रैंक, हम मार्केट निकालते थे, मतलब हम अगर चाहते तो मार्केट रोक सकते थे कि आज मार्केट में गाड़ी नहीं देनी है, गलत रेट निकाला है, तो हम कर सकते थे। टेल यू, आउट ऑफ द 10 ट्रांसपोर्टर्स एक भी नहीं है आज। नहीं, ये तो विडंबना है ट्रांसपोर्ट। जस्ट इमेजिन, और ये सब थर्ड जनरेशन ने बंद करी है। सेकंड जनरेशन ने, फर्स्ट जनरेशन ने स्टार्ट करी, सेकंड जनरेशन ने एक्सपेंड करी, और थर्ड जनरेशन ने बंद कर दी। का सर एक सबसे बड़ा रीज़न है जो थर्ड जनरेशन, जैसे मैं भी थर्ड जनरेशन हूँ इस लाइन में, हम लोग का जो मेन टारगेट आ गया है ना, वो आ गया है ड्राइवर और स्टाफ। आप कह सकते हो कि जो पुराने इतने खर्चे थे नहीं, आज ड्राइवर की एक्सपेक्टेशन है 40 से 50 हज़ार रुपये मिनिमम, कि उसको पता है कि वो 24 घंटे आपके साथ लगा है, तो 50 हज़ार उसको चाहिए, 40 हज़ार चाहिए, क्योंकि उसके पास भी अमेज़ॉन आ चुका है, फ्लिपकार्ट आ चुका है, उसको भी ब्रांड्स का शौक हो गया है। जो हम पहन रहे हैं वो भी सोचता हम भी पहन लें अब। तो वो अब एक तो पहले आपको ड्राइवर को देने 50 हज़ार कमा के उस गाड़ी से। अब स्टाफ जो पहले ज़माने में स्टाफ 10-15 हज़ार में मिल जाता था, अब पहले तो 10-15 हज़ार का स्टाफ वो काम करता था कम से कम 12 से 14 घंटे। अब आज की जो नई खेप आई है, जिसको बोलते हैं नए यंग जनरेशन जो आई है, वो देखते हैं 6 घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए सर, बस अब इससे ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, और उसकी तनख्वाह जो है वो 20 से 25 हज़ार क्लेम कर रहा है। कम से कम क्योंकि उसको कंप्यूटर चाहिए, क्योंकि सरकार ने इतना सिस्टम बना दिया है, इतना टेक्नोलॉजी को हाईफाई कर दिया है कि आप इतनी सी गलती करोगे तो 10 हज़ार पे करोगे। तो आपको पढ़ा लिखा लड़का बिठाना ही बिठाना है, और पढ़ा लिखा बोलता है मैं तो 6 घंटे से ज़्यादा वर्किंग करूँगा नहीं। वो ट्रांसपोर्ट के धंधे में 6 घंटे वाली वर्किंग है ही नहीं। आज किसी भी जनरेशन के आदमी को उठा लीजिए, वो बोलेगा भैया रात के 12 बजे भी फ़ोन आएगा तो मैं उठाता हूँ, यदि मेरा स्टाफ नहीं उठाएगा तो मैं उठाऊँगा। और अब क्या हो गया, स्टाफ उठाना बंद कर गए हैं, अब मालिक उठाना रह गया है। स्टाफ या तो फिर डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट में आदमी रखें, उतना मार्जिन नहीं है। डू अ फेयर कॉस्टिंग ऑफ आवर बिजनेस। एक्जेक्टली। आज मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको कि अहमदाबाद से दिल्ली व्हीकल जाता है तो 2200 रुपये टन में जाता है, 2500 रुपये टन में जाता है। दिल्ली से वही गाड़ी अहमदाबाद आती है 700 रुपये टन में। क्यों? आने में टोल कम लगता है, आने में डीजल कम जाता है, आने में ड्राइवर कम तनख्वाह लेता है, आने में पुलिस वाला कम परेशान करता है। वाई? So that is what he said, कि it is a demand and supply. सप्लाई है दिल्ली में ज़्यादा है, क्योंकि दिल्ली में सब जगह से गाड़ी आ रही है, तो वहाँ मार्केट डाउन हो जाता है। तो हमको जब तक हम, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू कॉस्ट बेस पे आने का, कॉस्ट प्लस बेस पे आने का फॉर अस। Do we need to have a strong change of our business model? You cannot change it. प्रॉब्लम वो है। Can associations do something? No, they cannot. कैसे करेंगे? You give me we tried. I'll tell you, the only thing today we need to do is we should be freight plus toll. Yes. And that will save the industry, otherwise nothing can save the industry. Unless you pass on your toll to the customers and the vehicle owners. आज मैं बुकिंग करता हूँ, I have to recover from my customers, I have to pass it on to the vehicle. Actual 8,000 रुपये लगा, 8,000 रुपये गाड़ी वाले को दे दो, कस्टमर से ले लो, उसमें हमको कमाने का नहीं है। टैक्सी वाले वही कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हमारे सिवा सब कर रहे हैं। बस में जाओ, बस कर रहा है। अब बस हायर करोगे बोलेगा प्लस टोल, टैक्सी वाला बोलेगा प्लस टोल, बुलेट टैंकर जो अपनी गैस की चल रही है प्लस टोल चल रही है, आपकी जो भी स्पेशलाइज व्हीकल्स है एक्सेप्ट कार के सब प्लस टोल पे चल रही है। It is always a delight meeting the former presidents of AIMTC and listening to their stories of their tenure and their achievements. It was a privilege catching up with Gulati ji and our very own Guruji just before the meeting. And this is what they had to say about the progress at AIMTC. Gulati ji, you have been a past president of AIMTC long time back. तब से और आज में क्या बदलाव दिख रहा है आपको AIMTC के वर्किंग में? जमीन और आसमान का फर्क है। Was it better then or better now? It is according to the circumstances. It has to be. But what changes do you see? Changes in the जागरूकता आई है लोगों में, AIMTC के जोड़ने के ख्याल से लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब कब तक ये चलेगा
गवर्नमेंट से हम लड़ पा नहीं रहे, चाहे जितनी मर्जी हमारी स्ट्रेंथ हो जाए, वी कैन नॉट फाइट। और एमिकेबली कोई सोल्यूशन नहीं है। दे गो फॉर देयर पॉलिसी, और हमको तो जैसे मैं हमेशा कहता था, दुधारू गाय हैं, जहाँ लगा के दूध लो, वो साफ है हमारा। जी, आज रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कौन से चेंजेस हमारे को चाहिए जिससे ट्रकर और ट्रांसपोर्टर दोनों की लाइफ बेटर हो सके? देखो, अभी तक 86 ईयर्स का संस्था कोई भी नहीं है। ये कंक्रीट करके मोल्डिंग बना के चली गया, उसके ऊपर बिल्डिंग बना के जाने वाला हम लोग हैं। अभी जा रहा है रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे में, आने वाला समय में कुछ भी होने दो, रेट देने के लिए एंटायर एंटरप्राइजेस रेडी है, स्टेक होल्डर रेडी है। हम लेने के लिए प्रॉब्लम क्या है, वो मुद्दा अभी इम्पोर्टेंट रख के आगे जाता है। गवर्नमेंट का लड़ने का अलग है, डे टू डे पॉलिसी में बहुत बड़ा मुश्किल होता है। स्क्रैपिंग पॉलिसी, बाद में ये यूए बिल, इसमें बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है। मगर हम लोग को प्रिपेयर करके हम आगे कैसा जाना, वो अभी इम्पोर्टेंट मुद्दा रख के हम लोग ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जा रहे हैं। इंस्टीट्यूशन तो मैंने रिफॉर्म किया, गवर्नमेंट से भी टायर ओजीएल में इंपोर्ट कराया, सब कुछ किया, लेकिन वो क्या कहते हैं, ज्यों-ज्यों दवा की नई बीमारी लगती गई और दर्द बढ़ता गया, तो हम पुराने चीज़ों को भूल जाते हैं और करंट अफेयर्स को डील करने लगते हैं, तो वो लाइलाज हो गया। बट डू यू थिंक हमारा जो एआईएमटीसी का जो वोटिंग प्रोसेस है, वो पोस्टल बैलेट से हटके इट हैज टू गो टू अ मोर साइंटिफिक एंड अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस? यस, इट मस्ट बी, ऐसा होना चाहिए। Because I think हनुकपा जी, आपके पास at any given point of time जब इलेक्शन होता है 100-200 बैलेट आपके हाथ में ही होते हैं। गुलाटी जी टाइम में बहुत स्ट्रिक्टली इलेक्शन प्रोसेस किया आफ्टर 76 ईयर्स। हमने तो अलाउ नहीं किया था। ईच एंड एवरीबडी हैज टू सेंड इट और कम एंड पुट इन द बॉक्स। मैंने ग्रुप में रिसीव करने को ऑफिस को बिल्कुल इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी। और आज ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कौन से बदलाव आपको लगता है आने चाहिए जिससे लाइफ बेटर हो सके? नहीं, उसमें यह कि पहले तो हम अपने आप में सुधार करें, मतलब गवर्नमेंट को यकीन हो तो वो हमारा साथ दे। उनको अपने फंड्स की ज़रूरत है, वो अपने नाम की ज़रूरत है, और गडकरी जी रोड बना रहे हैं और वो जहाज़ बना रहे हैं, हम लोग की कोई परवाह ही नहीं है। आपको क्या लगता है ट्रकर्स का फ्यूचर कैसा होगा? अच्छा होगा, हमको लगता है। अभी हम लोग प्रिपेयर होने के लिए शुरू कर दिया ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से। फिक्सेशन ऑफ रेट, अभी कोई भी होने दो, सबको ऑटो का फिक्स है, ट्रक का फिक्स है, बस का फिक्स है, मगर हम लोग का फिक्सर रेट अभी तक नहीं दिया सरकार। हमको फिक्सर रेट दे दिया तो हम भी आराम से हमारा व्यवसाय चला सकता है। आगे बहुत बढ़िया इंडस्ट्री डेवलपमेंट मेजर हो रहा है। एंटायर वर्ल्ड में हम लोग सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस में आने को टाइम में इसमें 40 to 50% तक ट्रांसपोर्ट में लग जाएगा। विदाउट ट्रांसपोर्ट कोई भी नहीं चला सकता आज। इसलिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने को टाइम में हमारा ट्रकर भी डेवलप होने के लिए बहुत बड़ा चांसेस है। ये आवश्यकता है सरकार का, हमारा यूज़ नेक्स्ट आगे वाला समय में बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से मैं पहले बोलना चाहता हूँ, मल्टी एक्सल हम लोगों ने अपने टाइम में फोर्स किया, इंट्रोड्यूस किया, गवर्नमेंट को दबाव डाला कि, लेकिन गवर्नमेंट ने काफ़ी रुकावट पैदा की कि हमारी पुलिया ठीक नहीं, रोड ठीक नहीं है। हमने उनसे कहा, राजेश पायलट से, कि भाई जब 40 टन उसी ट्रक पे जा रहा है, सेम पुल पे जा रहा है, तुम कैसे कहते हो कि इसको पुलिया ठीक नहीं है? जो एग्जामिन करा लो, पुलिया ठीक करा लो। आज मल्टी एक्सल की वजह से एक्सीडेंट्स कम हो गए हैं। सबसे बात ट्रांसपोर्टेशन और फ्रेट अच्छे हो गए। सबसे बड़ी चीज़ है, अब फ्रेट के बारे में कोई ट्रांसपोर्टर अपनी कंप्लेंट नहीं कर सकता। आप दोनों से एक लास्ट क्वेश्चन, आपके हिसाब से वाज एआईएमटीसी स्ट्रॉन्गर इन योर टर्म और करंटली? नहीं, स्ट्रॉन्गर तो चूँकि विस्तार हो गया है तो स्ट्रॉन्गर तो हो ही गई। जब एमसी मेंबर की इंक्रीज हो गए, लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो नेचुरली कुछ ना कुछ दिमाग आता है लोगों का
कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो प्रोग्रेस तो होगी ही होगी। बट फ्रॉम अ यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू तब बेटर था कि अब बेटर है? दिस इज बेटर। जी, आपके थॉट्स, आपके टाइम पे जब आप प्रेसिडेंट थे तब एआईएमटीसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड थी कि अब? अभी भी स्ट्रांग है। आने वाला समय में एक एक आदमी आने वाला मौका मिल गया तो हम सरकार का पास फाइट करके जा रहा है। अभी एंटायर कंट्री छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट तालुक में हम लोग प्रसाद किया 10 साल से मेंबरशिप, अभी 11 हज़ार के ऊपर हमारा मेंबरशिप ज़्यादा हो गया एसोसिएशन का, ऑर्गेनाइजेशन का। ये ऑर्गेनाइजेशन अभी मेजर हमें साउथ इंडिया में अभी पेट्रोल बंक होने दो, ऑयल होने दो, ये हमारा यूज़ क्या करना, हमारा ज़मीन हमारा, ऐसा हमारा मटेरियल हम यूज़ करना, ऐसा सिस्टम लेकर आए हमारा साउथ में। ऐसा ही पूरा एंटायर कंट्री आने के लिए कोशिश कर रहा है। दिस टाइम इलेक्शन एंटायर कंट्री में देखो एक एनफ है, कहाँ भी इलेक्शन नहीं है, अनएनिमसली इलेक्शन किया दिस टाइम। ये बहुत बड़ा मुद्दा, बाद में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा शक्ति आ गया ऑल इंडिया में। यूनानिमस होना क्या ये खराब साइन है या अच्छा साइन है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा साइन है ना। कोई नहीं नहीं, काम करने वाला कोई भी आना दो, आप जाओ करके आदमी लोग चुना के बेचता था इसको। अभी इसके लिए बहुत बड़ा अच्छा काम लग गया दिस टाइम। एंटायर कंट्री कहाँ भी इलेक्शन नहीं है, इसके लिए अभी हमारा मजबूत हो गया, हमारा स्ट्रांग हो गया। मगर ये पुराना आदमी लोग कैसा गाइड किया, ऐसा ही आज भी सब मीटिंग में आके गाइड कर रहा है। यही हमारा ऑल इंडिया का बहुत बड़ा भविष्य आगे आने वाला समय में भी रहेगा। I disagree with this anonymous. A hearty competition must be there. जब वो competition होता है, अच्छा दूसरा nowadays during the election period all the activities are paralyzed. Nobody is worried about the हम इसको मोटर ऑपरेटर का ध्यान दें, उनको इलेक्शन में ही ध्यान देना है। They will move around the country for themselves, not for us. Self-interest है। It was a hectic day for all the members, but they ended the day well with some good entertainment, with many of the members starring themselves further, dancing to the wonderful music. Also, this seemed the best way to drown their problems. As we wrap up this episode, remember every 32 seconds, a Safe Express route is on the move. Whether it's your critical business shipment or personal package, their fastest, safest, and most reliable logistics network is always at work. With 95% plus service reliability and a no questions asked claim settlement policy, your trust is their commitment. Choose Safe Express because when they carry your shipment, it's as safe as sold to Safe Express. You have been watching Ashok Leyland Presents Trans India, Real People, Real Emotions, powered by Hindustan Petroleum and Safe Express, the leader in express distribution, redefining logistics in India. Until next week, stay safe and drive safe. Jai Hind.